Hi everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. In today's video, we are going to continue with the topic of chemical bonding and molecular structure, which is the fourth unit of class 11 chemistry. Okay, so in the last video series, we covered up to the topic of limitation of octet rule. We discovered how atoms bond. Okay, then what are the different theories given to explain the chemical bonding. We discussed the Clausius-Lewis approach in detail. We also discussed how to write down the Lewis dot structures of different compounds, how ionic bonding occurs, how covalent bonding occurs. We discussed a brief introduction of these topics, and then we discussed the limitation of octet rule. In today's video lecture, we are going to start with the ionic bonding in detail and the different bond parameters, which explains how bonding occurs. So kindly watch this video and subscribe to my channel, and if you find it useful, then please give it a like and also share it with your friends. So let's start with ionic or say electrovalent bond. Okay, so we know ionic bonding occurs when there is transfer of electrons, whether it's through gain of electrons or through loss of electrons. When ionic bonding occurs, it is surely occurring between two ions. One of them is positively charged, that is cation. The cation is formed when there is loss of electrons from an atom, and the second component is the anionic part, that is the one having negative charge, which is formed when an atom gains electrons. So interaction of these charged particles leads to the formation of ionic bond. Now we will discuss this ionic bonding in detail using an example of NaCl formation, like how sodium chloride ionic solid is formed. So it includes three steps. The first step, in which the sodium ionizes to give sodium ion and an electron is removed. In the second step, chlorine gains an electron to form Cl minus ion. And in the third step, the positively charged sodium ion and the negatively charged chloride ion interacts to form sodium chloride. Okay, चलो अब इन एक एक स्टेप को हम समझते हैं इंडिविजुअली कैसे ये वर्क करते हैं. So if we talk about step 1, in that the sodium is ionized to form sodium ion, that is Na plus, and an electron is removed from that. So why sodium is giving this electron? We know the electronic configuration of sodium is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. That is, it contains one electron in its valence shell 3s. So if it donates this one electron, it will gain the noble gas configuration. The last valence shell will then become n is equal to 2, which has 8 electrons completely filled. That is, the noble gas configuration is achieved and it will be stable. So that is the reason why sodium easily donates the electron, and the ionization energy or value of this process, that is the ionization enthalpy, is quite low. Okay, so this is how this step 1 occurs. If we talk about step 2, in this chlorine gains this electron which is lost by the sodium and forms chloride ion. Now why chlorine is gaining this electron? The reason behind this is that since chlorine has the atomic number 17 and it has 7 electrons in its valence shell configuration, so because of that, if it gains one electron, it will achieve the noble gas configuration, it will become stable. So it easily and very fastly gains the electron lost by the sodium. After that, chloride ion is formed, and we discussed in the unit 3 in the process of electron gain enthalpy that if any atom is easily gaining the electron, then its value of electron gain enthalpy is highly negative. Okay, so that is how chloride ion is being formed. Now if we talk about the third step, in the third step, interaction of the sodium ion and the chloride ion takes place. How this interaction occurs? Let's see. The Na plus and Cl minus ions comes across each other. They develop a force of attraction, and due to this force of attraction, which has been developed by the donation of electron from sodium to chloride ion, it forms NaCl lattice. So basically, when sodium ions and chloride ions are arranged in a repeated pattern, it is known as its lattice. Okay. Now, when Na plus ion and Cl minus ion are coming together, they are forming a stable ionic compound.
the bonding stabilizes the compound. So for sure, in this process of combination of Na plus and Cl minus ions, energy will be released, and in fact a very large amount of energy is released. This energy which is released when constituent ions of an ionic solid comes together is known as lattice enthalpy. आई होप आपको तीनों स्टेप्स क्लियर हो. फर्स्ट स्टेप में कैसे आयनाइजेशन हुआ, सेकंड स्टेप में कैसे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू हाईली नेगेटिव आई, एंड थर्ड स्टेप में कैसे जो एनर्जी रिलीज हुई वो बहुत ज़्यादा हाई थी. क्योंकि एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है, क्योंकि जो कंपोनेंट है, जो उसके कंस्टिट्यूएंट आयंस हैं, वो जो पास आ रहे हैं तो स्टेबल NaCl लैटिस बना रहे हैं. इसी प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी. अब अगर आपको लैटिस एंथैल्पी को डिफाइन करना है तो आप कैसे करोगे? सो लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन देखते हैं. एज यू कैन सी, द लैटिस एंथैल्पी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन constituent ions combine to form 1 mole of an ionic solid. That is what I have explained to you right now. But if we talk about the definition provided in your NCERT, it has defined lattice enthalpy as follows, that lattice enthalpy of an ionic solid is the energy required to completely separate 1 mole of a solid ionic compound into gaseous constituent ions. समझे? देखो, ऊपर वाली डेफिनेशन में हमने क्या बोला कि जब आयंस पास आएंगे तो एक स्टेबल आयनिक बॉन्डिंग होगी, आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन होगा, तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी. बट अगर इसी आयनिक सॉलिड के मैं कंस्टिट्यूएंट आयंस को अलग करना चाहूँ, सेपरेट आउट करना चाहूँ, तो उसमें उनके बीच में अब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक बॉन्डिंग है. सो उस बॉन्डिंग को मुझे ब्रेक करने के लिए एनर्जी उल्टा प्रोवाइड करनी पड़ेगी. सो इफ आई वांट टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ 1 mole of a solid ionic compound into its gaseous constituent ions, then in that case I need to provide the energy. ठीक है. सो इसीलिए बेसिकली वो दोनों डेफिनेशन सेम चीज कह रहे हैं, बस वाइस वर्सा. एक में उनको जोड़ के लैटिस बनाया जा रहा है एंड एक में लैटिस को ब्रेक किया जा रहा है. तो जब जोड़ के हम लैटिस बनाएंगे तो उसमें एनर्जी अपने आप रिलीज होगी, बिकॉज वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है. एंड जब हम उस आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करके आयंस बनाएंगे तो स्टेबिलिटी कम हो रही है, उसको डिस्टेबलाइज करें, तो उस केस में हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू डेफिनेशंस. सो आई होप कि लैटिस एंथैल्पी और आयनिक बॉन्ड अब आपको क्लियर हो. नाउ लेट्स सी द इम्पॉर्टेंट कंडीशंस विच आर मस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ गुड आयनिक बॉन्ड और स्टेबल आयनिक बॉन्ड. सो इफ द part or the element which is donating the electron is losing the electron has low ionization enthalpy, then ionic bond is favorable. Also, if the element which is gaining the electron has high negative electron gain enthalpy, then also ionic bond is favorable. And if the combination of these ions results into the release of large amount of lattice energy, then also it is favorable. So these are the important conditions for the formation of ionic bond. Now we'll start with another fresh topic, that is bond parameter. So we have been talking about chemical bonds, single bond, double bond, triple bond, ionic bond. So what are the different characteristics of these bonds which are important, which define the bonds and which constitutes any molecule? Okay. Among these bond parameters, we need to study 6 parameters: bond length, bond order, bond strength, okay, bond angle, polarity of the bond, and their resonance structures. So we'll discuss each of them one by one. Let's start with the first parameter, that is bond length. The bond length is the simplest bond parameter. How will we define the bond length between two atoms? When two atoms combine, then only bond is formed, right? So how will we define the bond length of this molecule? So the atoms among which we are seeing or measuring the bond length, the distance between the nucleus of their atoms is the bond length. If we want to define it in a formal way, we can say it is defined as the equilibrium distance between nuclei of two bonded atoms in a molecule.
बिल्कुल सिंपल बात कही है ना। आप देख सकते हो इमेज में कि जैसे हमारे दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक थोड़ा छोटा है एक बड़ा है, इनके बीच में जो न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस है दैट इज सम ऑफ R1 प्लस R2 डिफाइंस द बॉन्ड लेंथ। चलो अब बॉन्ड लेंथ, अगर हमें बॉन्ड लेंथ पता है किसी मॉलिक्यूल की तो हम उसमें इन्वॉल्व एटम्स का रेडियस भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे? अगर किसी मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है तो वो नॉन मेटल्स के बीच में होती है जनरली कोवलेंट बॉन्डिंग, तो उसमें हम कोवलेंट रेडियस कैलकुलेट करते हैं। अगर मेटल्स की बात करें तो उसमें मेटालिक बॉन्डिंग होती है, उसमें हम मेटालिक रेडियस निकालेंगे। अगर आयंस की बात करें उसमें आयनिक बॉन्डिंग होती है तो उसमें हम आयनिक रेडियस निकालते हैं। एंड अगर सिमिलर एटम्स की बात करें, एक ही कंपाउंड में या एक ही हमारे सब्सटेंस में अलग अलग मॉलिक्यूल्स में सिमिलर एटम्स जो प्रेजेंट हुआ, फॉर एग्जांपल हम वाटर ले रहे हैं तो अगर एक मोल की बात करूँ तो उस एक मोल में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। सो उस वाटर मॉलिक्यूल में जो इंडिविजुअली ऑक्सीजन से जब इंटरेक्शन करेगा उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, अगर मुझे वो पता करना है तो मैं उस केस में निकालूंगी वैन वाल रेडियस। इसमें ऑक्सीजन में डायरेक्टली बॉन्ड नहीं है, बस वो बराबर में प्रेजेंट है, तो उनके बीच में अगर मुझे कैलकुलेट करना है क्या रेडियस है उनका, आपस में क्या डिस्टेंस है, तो वो मैं वैन डर वाल रेडियस से बता सकती हूँ। सो दिस वर द टाइप ऑफ डिफरेंट रेडियस विच वी कैन कैलकुलेट यूजिंग बॉन्ड लेंथ। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, how bond length is related to the size of atoms. Very simple, directly related. As the size of the atoms increases, the bond length of the molecule increases. ये तो बिल्कुल ऑब्वियस चीज है, आप देख भी सकते हो इमेज में, हमने एग्जांपल लिया है। फर्स्ट वाले में थोड़े छोटे एटम्स थे, सेकंड वाले में साइज बड़ा हुआ, थर्ड वाले में और साइज बढ़ गया। तो फर्स्ट वाले में आप देख सकते हो जो बॉन्ड शो हुआ है ना, वो शॉर्ट है। जैसे एटम्स का साइज बढ़ा तो उनका इंडिविजुअल रेडियस बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ गई। ऐसे ही थर्ड वाले में जो बॉन्ड लेंथ है और इंक्रीज हो गई। सो वी कैन कंक्लूड दैट एज द साइज ऑफ द एटम्स इंक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ पैरामीटर, दैट इज बॉन्ड एंगल। नाउ व्हाट इज बॉन्ड एंगल? सो हम किसी भी मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल है वो मेजर कर रहे हैं तो वो उसका बॉन्ड एंगल होता है। अगर हम इसको अच्छे वे में और कंप्लीट डेफिनेशन में डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं दैट द एंगल बिटवीन ऑर्बिटल्स containing bonding electron pairs around central atom in a molecule is the bond angle, right? यानी कि एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसमें सेंट्रल एटम कार्बन है। अब कार्बन दो ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ है। सो ये जो दो ऑक्सीजन एटम्स हैं, है ना, जिससे कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं, सो जो कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, उनके बीच में क्या एंगल है, वही बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, अब हम बॉन्ड एंगल स्टडी क्यों कर रहे हैं बच्चों? बॉन्ड एंगल हम इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। जो इसका सबसे मेजर और सबसे इम्पॉर्टेंट यूज है वो ये कि हम बॉन्ड एंगल की हेल्प से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को करेक्टली प्रिडिक्ट करने में सक्सेसफुल रहे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। सी हियर, अभी जब हमने लास्ट वीडियो में ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स देखे थे अलग अलग कंपाउंड के, तो हमने उसमें क्या देखा था, हमने फर्स्ट एग्जांपल वाटर का ही लिया था। उसमें हमने पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल काउंट किए थे, राइट। देन उसके बाद हमने सेंट्रल एटम डिसाइड किया था कौन सा होगा, ऑक्सीजन। फिर हमने बॉन्ड्स बनाए थे, फिर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया था, एंड उसके बेसिस पे हमने वाटर का ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाया था। तो उस टाइम पे हमने एंगल पर तो ध्यान दिया ही नहीं था, क्योंकि ल्यूइस अप्रोच तक वहां पर एंगल्स की कोई मेजरली बात हुई नहीं थी, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग को देखा जा रहा था। सो उसके बेसिस पे हमने सिंपली एक लीनियर मॉलिक्यूल बना दिया था वाटर का, जैसे कि आप देख सकते हो। बट अगर हम ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं वाटर का, तो इसमें एंगल क्या है, 180 डिग्री। बट एक्सपेरिमेंटली जब बॉन्ड एंगल को कैलकुलेट किया गया यूजिंग डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स, सो इट वाज फाउंड आउट दैट द एंगल इन water is not 180 degree, in fact it is 104.5 degree. So अब एंगल 104.5 डिग्री है तो शेप तो ऑब्वियसली ये नहीं हो सकती लीनियर। इसका मतलब जो OH वाले ऑर्बिटल्स हैं जिनमें बॉन्डिंग पेयर्स प्रेजेंट है वो स्लाइटली बेंट है, स्लाइटली
उसकी तरफ प्रेजेंट है, एक दूसरे की तरफ बेंट है, एक दूसरे की तरफ प्रेजेंट है, ऑक्सीजन से दूर हट रहे हैं, सो उस तभी वजह से एंगल 104.5 डिग्री है। तो इसका जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा वो एक बेंट या फिर वी शेप होगा, नॉट द लीनियर शेप ऑफ वाटर. So that is how bond angle helped us to determine the shape of water, and similarly it has helped over time to determine the shape of many molecules. Okay, चलो इसी के साथ हमने बॉन्ड एंगल क्या होता है वो समझ लिया एंड उसकी इम्पोर्टेंस भी. Moving on to the next topic, bond enthalpy. So basically, if in a molecule different bonds, we know different bonds are present. So if I want to break a particular bond in that molecule, and the energy I have to provide or I have to apply to break that bond is known as bond enthalpy of that particular bond. Okay, इसकी जो यूनिट होती है, हम जितनी भी एंथैल्पीज लेंगे यहाँ पे जनरली उनको किलोजूल पर मोल में लेते हैं. बॉन्ड एंथैल्पी को भी हम किलोजूल पर मोल में मेजर करेंगे. एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हमारे पास एक H2 का डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इफ आई वांट टू ब्रेक दैट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट हाइड्रोजन एटम्स, देन आई हैव टू अप्लाई द बॉन्ड एंथैल्पी इक्वल टू 435.8 kilojoule per mole. Now you can see the value is positive. Reason being, because we are providing this energy. This energy is not released. Whenever energy will be released, its value will be negative, and whenever energy will be provided or required, in that case the value will be positive. That is why bond enthalpy is positive here. So another important point related to bond enthalpy, larger the value of bond dissociation enthalpy, stronger will be the bond. वेरी सिंपल एंड क्लियर पॉइंट. अगर मुझे किसी बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ रही है, दैट मीन्स वो बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग है, तभी तो मुझे उसे ब्रेक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है. अगर कोई वीक सा बॉन्ड होगा तो मुझे तो उसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, थोड़ी सी एनर्जी और वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. बट अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो उसको तोड़ने में, उनको अलग करने में आए, उसको मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. सो दैट इज दैट पॉइंट. नेक्स्ट, अगर हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उस केस में हम सिंपली ओवरऑल बॉन्ड एंथैल्पी नहीं देखते, बल्कि एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी देखते हैं. अब एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि उस मॉलिक्यूल में जितने भी बॉन्ड्स प्रेजेंट है, उनको जब हम ब्रेक करेंगे तो कितनी एनर्जी इंडिविजुअली रिलीज हो रही है हर स्टेप में, उन सबको ऐड करके हम एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को कैलकुलेट करते हैं. With this, the third parameter, bond enthalpy, is also complete. Moving on to the next parameter, that is bond order. Now, if we talk about the bond order, what is bond order? It is simply the number of bonds present in a molecule. Okay? और इनफैक्ट मॉलिक्यूल में या तो हम टोटल नहीं काउंट कर रहे हैं, ठीक है, वो तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो गए. बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात करें, इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम H2O की बात करें तो इसमें टोटल बॉन्ड कितने हैं? 2. बट अगर हम दो एटम्स की बात करें, OH, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? इट इज 1, बिकॉज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आर बॉन्डेड टुगेदर बाय 1 बॉन्ड. एग्जाम्पल आप देख ही सकते हो, हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है, बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा. ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है बाय द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच, सो इट इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड बॉन्ड ऑर्डर इज 2. इन नाइट्रोजन देयर इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट एंड द बॉन्ड ऑर्डर इज 3. So this is how you can easily calculate the bond order between any two atoms. चलो, अब हमने 4 पैरामीटर्स को बहुत अच्छे से समझ लिया. What are these 4 parameters? The first parameter, that is bond length. Second parameter, bond enthalpy. Third parameter, bond एंगल, एंड द फोर्थ पैरामीटर बॉन्ड ऑर्डर. सो क्या इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन भी है? क्या हम इनको रिलेट करके भी पढ़ सकते हैं? यस, वी कैन श्योरली डू दैट. ओके, सो अगर हम इसमें रिलेट करके इसको देखना चाहें तो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कैसे इंक्रीज होता है? देखो, अगर हम मूव कर रहे हैं सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज हो रहे हैं. दैट मीन्स कि बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना. सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 1, डबल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 2, ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 3. अब
जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे तो इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। देखो सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, एटम्स में ओवरलैपिंग कम हो रही है, इतनी शेयरिंग नहीं हो रही है। जैसे ही अब इंडिविजुअल उन दो एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन और शेयर किया और डबल बॉन्ड बना तो उनमें शेयरिंग ज्यादा हुई, दैट मीन्स ओवरलैपिंग और अच्छी हुई। थर्ड बॉन्ड जब फॉर्म हुआ ट्रिपल बॉन्ड, दैट मीन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी वो शेयर कर रहे हैं और ओवरलैपिंग हो रही है। सो इसी वजह से जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो सिंगल टू ट्रिपल बॉन्ड इंक्रीज हो रही है। ये हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी दे रहे हैं और 3 बॉन्ड्स को तोड़ने में एनर्जी दे रहे हैं, तो जब हम सिंगल बॉन्ड भी तोड़ रहे हैं और उस ट्रिपल बॉन्ड में हम ट्रिपल बॉन्ड भी, डबल बॉन्ड भी और सिंगल बॉन्ड भी, तीनों तरह के बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड में हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसके बेसिस पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड हैज मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। अगर बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें, ये तो बॉन्ड स्ट्रेंथ से ही रिलेटेड है। जिस बॉन्ड में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं, ऑब्वियसली देनी पड़ेगी। सो जहां पे बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा वहीं पे मुझे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो ग्रेटर द बॉन्ड स्ट्रेंथ ग्रेटर इज द बॉन्ड एंथैल्पी। सो ये डायरेक्टली रिलेटेड है, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ से डायरेक्टली रिलेटेड है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड एंथैल्पी से डायरेक्टली रिलेटेड है। नाउ व्हाट अबाउट द बॉन्ड लेंथ। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो उससे किस तरह से रिलेटेड है, सोचने वाली बात है। देखो अब हमने बोला कि किसी बॉन्ड में एंथैल्पी, अगर हम 2 बॉन्ड्स में कंपैरिजन कर रहे हैं तो एक बॉन्ड वीक है, एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एक में बॉन्ड ऑर्डर कम है, एक में बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा होगी? जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, या डबल बॉन्ड की ज्यादा होगी, या ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा होगी? So if we compare among these 3 types, single bond will be the longest. Reason being, उसमें शेयरिंग थोड़ी कम हो रही है, ओवरलैपिंग थोड़ी कम हो रही है और एटम्स के बीच में डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। एज वी मूव टू डबल बॉन्ड द बॉन्ड लेंथ स्लाइटली डिक्रीजेज, एंड एज वी मूव टू ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ और डिक्रीज होती है। तो हम बॉन्ड लेंथ को कैसे रिलेट कर सकते हैं, दैट जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी यानी कि एटम्स के बीच में उतना डिस्टेंस होगा, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी एंड उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो उस बॉन्ड को तोड़ने में मुझे एंथैल्पी भी कम देनी पड़ेगी, तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी। वेयरएज अगर किसी बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ कम होगी, दैट मीन्स एटम्स पास पास है, डिस्टेंस कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ओवरलैपिंग ज्यादा है, दैट मीन्स वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, तो उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी और उसको ब्रेक करने के लिए मुझे एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी कि उसकी बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। सो लाइक दिस वी कैन रिलेट ऑल दी बॉन्ड पैरामीटर्स विच वी हैव डिस्कस्ड। ओके, नाउ with this, in this particular video we have completed the ionic bonding, how the 3 steps leads to the formation of ionic bond, what is lattice enthalpy, how energy is being released when a formation of ionic solid lattice occurs, and what are the conditions that lead to the formation of stable ionic bond. Then we discussed the 4 bond parameters and how are they related. The first bond parameter being bond length, then the second bond parameter that is bond angle, then third bond parameter that is bond enthalpy, and the fourth bond parameter that is bond order. Okay, so with this all your bond parameters are complete. Remaining are 2 parameters which are related to bonding itself, that is resonance structures and the bond polarity. These 2 topics we will discuss and continue in the second part of the video, in the next video. So kindly watch that also to complete your unit, and if you find the video useful, kindly mention it in the comment section, and you can also mention your doubts in the comment section. Thank you.